Hello students, so today we are going to start with the next chapter of your macroeconomic part, that is balance of payments. If you are following any of the reference books like VK Ori or Dinesh or any of the other publications, then this will be in the last unit of your book. But right now we are proceeding with this chapter as it is quite easy to understand and a very short chapter, also consisting of some basic concepts which will be helpful for you to understand the later practical part. Okay, so let's get started with this chapter. So now let us discuss about the two basic terms of this chapter. First is the balance of trade and second is the balance of payment. Balance of trade, it is the difference in the value of import and export of visible items only, that is material goods. Balance of trade is a list of values of goods imported and exported. So एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमी साल भर में कितने गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगी, इसकी वैल्यू का एक कंप्लीट रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. Here we are only including the visible items, that is material goods, means which you can see, which you can feel, which you can touch. Talking about balance of payment, it is a systematic record of all economic transactions between the residents of a reporting country and residents of foreign countries during a period of time. Again, एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री की इकोनॉमी और उसके रेसिडेंट्स अपनी कंट्री के साथ दूसरी किसी फॉरेन कंट्री से क्या डीलिंग करते हैं, कितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में एंटर होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस की समरी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. Next, let us discuss some of the features of BOP, that is balance of payment. It is a systematic record of all economic transactions between the residents of one country and the rest of the world. एक country के residents और rest of the world में जितने भी economic transactions होंगे उसकी पूरी एक summary, एक पूरा systematic record होता है. BOP में हम तीन चीज़ें include करते हैं: visible, invisible and capital transfers, or also you can say unilateral transfers. What are these? Visible items means goods basically which you can see, which you can feel, which you can touch. Invisible items means services like जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज़ इट, लाइक टेलीकॉम सर्विसेज की आप बात कर सकते हो, सॉफ्टवेयर्स की बात कर सकते हो. तो ये सब सारी चीज़ें इनविजिबल आइटम्स में आती है. एंड कैपिटल ट्रांसफर्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मीन दीज आर दी ओनली वन साइडेड ट्रांजेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गिविंग ग्रांट टू वन अनदर कंट्री, और किसी कंट्री में कोई ट्रेजेडी की सिचुएशन हो गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, एंड वी आर गिविंग देम सम फाइनेंशियल हेल्प, देन दीज आर द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जिसके हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसके कंसिडरेशन में यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, यू आर जस्ट पेइंग दीज एज द सिंबल ऑफ लव, टोकन और अफेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एक टाइम पीरियड जो है वो फिक्स्ड होता है, एंड यूजुअली इट इज़ ऑफ 1 ईयर, दैट इज़ 1 अकाउंटिंग ईयर. हर साल अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंगली ही हम BOP के स्टेटमेंट्स को भी प्रिपेयर करते हैं. दिस इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. लाइकवाइज डबल एंट्री सिस्टम जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो कि देर इज़ ऑलवेज अ डेबिट, देर इज़ ऑलवेज अ क्रेडिट, एंड दोनों साइड्स पर साइमल्टेनियस इफेक्ट्स होते हैं. जो आप क्रेडिट साइड पे एंट्री करोगे उसी का इफेक्ट डेबिट में भी दिखेगा. तो सिमिलरली BOP में भी डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ही एंट्रीज की जाती है. फॉर एवरी एक्सपोर्ट यू आर पेइंग और यू आर गेटिंग समथिंग एल्स इन द रिटर्न. नेक्स्ट पॉइंट इज, in accounting sense total debits will always be equal to total receipts. whatever debit आप जो भी करोगे वो हमेशा आपके total receipts के equal होगा, that is equal to your credits होगा, क्योंकि whatever you are giving to them you are getting something in return to that. Next point is when receipts are greater than the payments, it is a surplus in BOP. Likewise, when the payments exceed receipts, there is a deficit in BOP. Definitely, जैसे हम accounts में देखेंगे, we will talk about in accounts of for profit and loss. So यहाँ पर भी वही same situation है, but we don't term it as profit and loss, we term it as surplus and deficit. जब आपके receipts ज़्यादा है, payments कम है, it means आपने export ज़्यादा किया है, import कम किया है. In that case, we have a surplus BOP. And whenever there is high imports, less exports, or we have paid much to rest of the world and gain less in the return of that, that is a deficit BOP, a less BOP.
Now let us study some of the points of distinction between BOT and BOP. Number one is definition. BOP is a systematic record of all economic transactions of a country. BOT is a systematic record of visible exports and import of a country. Nature of concept की बात करें, so BOP एक wider concept है definitely because it is including visible unilateral transfers and invisible items. Whereas BOT is a narrow concept, it is a part of BOP and including only of the visible items. If we talk about significance, so BOP एक quantitative summary है सारे transactions की जो कि एक country rest of the world से कर सकती है within an accounting year. And moreover we can say that it is a true indicator of a country, true indicator of a economy. Talking about BOT, it is not a true indicator as such क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस से बात होती है, कुछ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ का ट्रू इंडिकेटर नहीं होता बिकॉज हेयर वी आर ओनली डीलिंग विद द विजिबल गुड्स. आप सिर्फ गुड्स में जितना सेल करोगे, गुड्स में जितना रिसीव करोगे, आप सिर्फ वो रिकॉर्ड कर रहे हो. इट मे बी पॉसिबल, इट माइट बी देयर कि हमने गुड्स से ज़्यादा सर्विसेज ली हो या गुड्स से ज़्यादा हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट की हो. सो वहाँ पर इसका बैलेंस कंप्लीट होना या इसका इंपॉर्टेंस शो होना थोड़ा सा मुश्किल होता है. Talking about favorable and unfavorable, so BOP is always in balance. BOP हमेशा बैलेंस में ही होगा. ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, we'll discuss it later in this chapter. Whereas BOT ये favorable and unfavorable दोनों conditions में हो सकता है. Favorable means there can be a surplus like positive condition and there can be a deficit when there is a negative condition. Then talking about meeting deficits, so deficit in BOP can't be met through डेफिसिट इन BOP cannot be met through BOT. अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आया है तो उसे आप BOT से कंप्लीट नहीं कर सकते. मीन्स अगर आपका टोटल ओवरऑल BOP ही डेफिसिट में है तो फिर आपके एक विजिबल आइटम्स की उसमें काउंटिंग ले लेने से या विजिबल आइटम का कोई ट्रांजैक्शन वहाँ पर एंटर कर देने से BOP का बैलेंस कंप्लीट नहीं होगा. Talking about BOT, any deficit in BOT can be met by other components of BOP. अगर आपके विजिबल आइटम्स के किसी ट्रांजैक्शन में सरप्लस या डेफिसिट है तो डेफिनेटली हम BOP से आइटम्स को एक्यूमुलेट करके उन्हें एडजस्ट करके एंट्रीज को एडजस्ट करके हम BOT को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं. अगेन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि BOP एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड BOT दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ BOP. सो बेसिकली BOP में दो अकाउंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट. आइटम्स देखो, करेंट अकाउंट के अंदर आता है विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं बोरोइंग्स, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट. यू कैन सी द डायग्राम. करेंट अकाउंट के 3 पार्ट्स, कैपिटल अकाउंट के 3 पार्ट्स. Now let us talk about meaning and components of current account of BOP. So करंट अकाउंट अभी हमने देखा कि वो विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के बारे में सारे रिकॉर्ड्स करंट अकाउंट में होते हैं. सो बेसिकली करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट ऑफ BOP रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच डू नॉट कॉज अ चेंज इन द असेट्स और लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट. मीन्स यहाँ पर हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो कंट्री या उसकी गवर्नमेंट के असेट्स और लायबिलिटीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं करती. अगर आप अकाउंट्स में भी देखोगे तो करेंट इज़ व्हाट विच इज़ रेकरिंग, बार बार वो एक्सपेंसेस, बार बार वो इनकम्स हो रही हैं, तो वो बेसिकली आपके असेट्स या लायबिलिटी पर, किसी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं करती. Then it contains the receipts and payments relating to all transactions of visible, invisible items and unilateral transfers, जो अभी हमने components में देखा. And it affects the income, output and employment of a country. ये country की income, output और employment को इफेक्ट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल हमें एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करना है, तो हम जब गुड्स का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने वाले होंगे सो उस कंडीशन में हमारे यहाँ आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तभी तो हम एक्सेस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर पाएंगे. और एक्सेस प्रोडक्शन अगर करना होगा तो उतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा सो दैट दे कैन मेक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. एंड जब आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, सो डेफिनेटली कंट्री में इनकम भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब वो सामान सेल होगा तो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इनकम मिलेगी एंड दैट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी
population of the country. Next, talking about the components, क्या इसमें रहता है. First is export and import of visible goods, export and import of invisible goods, and receipts and payment of unilateral transfers. अब समझते हैं बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो करेंट अकाउंट में जितने भी हमने एक्सपोर्ट किए होते हैं गुड्स, सर्विसेज या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के, इन सब को हम क्रेडिट आइटम्स की कैटेगरी में रिकॉर्ड करते हैं. मींस इनसे हमें क्या मिल रहा है, इनसे हमें कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, हमें आउटसाइड कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं वो मिल रही हैं. इसलिए ये सारे एक्सपोर्ट्स के आइटम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाते हैं. इसी के कॉन्ट्ररी में जितने भी इम्पोर्ट्स होते हैं गुड्स के, सर्विसेज के या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वाले, उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज इसमें फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है. नेक्स्ट में हम इस डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दोनों को प्लस माइनस करके नेट वैल्यूज़ निकालते हैं. एंड इफ़ ये नेट वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट इज़ सरप्लस आता है, इट मीन्स हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का. और अगर ये बैलेंस डेफिसिट में जाता है, नेगेटिव आता है, तो वहाँ पर हम ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, इकोनॉमी डेफिसिट में चली गई है. Next, let us talk about some of the meaning and component of capital account of BOP. So, capital account of BOP record all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which cause a change in assets or liabilities of the residents of a country or its government. Means यहाँ पर वो permanent sort of transactions होंगे या उस level के transactions record करे जाएंगे जो कि किसी country के assets या liabilities को affect करते हैं. मीन्स यहाँ पर हम बेसिक गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं. अगर आप अकाउंट्स में अभी असेट्स एंड लायबिलिटीज समझ रहे होंगे, सो यू माइट हैव अंडरस्टूड कि असेट्स वो हैं जो एक पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल बिलोंगिंग की बात करते हैं, एंड लायबिलिटीज आर दी ऑब्लिगेशंस विच यू हैव टू पे टू दी आउटसाइडर्स. सो यहाँ पर कंट्री की या कंट्री के रहने वाले रेसिडेंट्स के असेट्स और लायबिलिटीज़ पर इफेक्ट पड़ता है. ऐसे आइटम्स अगर हमें रिकॉर्ड करने होंगे, सो दे ऑल विल बी गो टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP. Now, capital account of BOP has three components as we have already discussed. One is the borrowing and lendings, investment and changes in foreign exchange reserve. This capital account does not affect the income, output and employment status of the country, क्योंकि यहाँ पर हम किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा जनरेट होगा. इट इज़ ऑल अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और फिक्स्ड कैपिटल रेवेन्यूज, दैट इज असेट्स रिलेटेड, लायबिलिटीज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. So first item, that is borrowings and lendings. Borrowings and lendings में there are two types. First is the private transactions, second is the official transactions. What are the private transactions? Private transactions वो होते हैं जो कि assets and liabilities को इफेक्ट करेंगे बट नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ की या प्राइवेट सेक्टर्स की. लाइक इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, इफ़ कोई प्राइवेट कंपनी किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले लेती है या कोई बोरोइंग करती है या किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई बोरोइंग करती है, तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ इफेक्ट हो रही है. सिमिलरली अगर वो किसी अदर कंट्री में ले जाकर के कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ उनके असेट्स इफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स दे आर इंक्रीजिंग. सो बट ये किसके बिहाफ पे हो रहा है, किसी प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पे हो रहा है जो कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है. सो दीज आर नोन एज प्राइवेट ट्रांजैक्शंस. टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस, ये वो ट्रांजैक्शंस होंगे जो गवर्नमेंट के असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करेंगे. मीन्स अगर किसी सिचुएशन पे गवर्नमेंट विल आस्क कि हमें लोन चाहिए है, गवर्नमेंट विल आस्क फॉर बोरोइंग, गवर्नमेंट विल आस्क फॉर फंड्स. लाइक हम बहुत बार सुनते हैं कि इंडिया ने किसी चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया या IMF से फाइनेंसिंग करवाई है. सो उन कंडीशंस में जब गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर बोरोइंग्स करती है या गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर लेंडिंग्स करती है, तो वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में जाते हैं. Talking about investments, again there are two type of investment. First is the foreign direct investment, that is FDI. हमने बहुत सारा FDI का नाम सुना हुआ है. And second is the portfolio investment.
सो व्हाट इज एक्चुअल एंड एफडीआई? कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रह रहे हो और आपको अमेरिका में किसी असेट को खरीदना है, बट आप उस असेट पर अपना फुल कंट्रोल, फुल पावर चाहते हो. यू डोंट वांट कि आपने एक बार असेट खरीदा या आपने एक बार कोई बिजनेस सेटअप किया है तो उसमें कोई अदर पर्सन इंटरफेयर करे. इन दैट केस जब आप इस तरह से कोई असेट खरीदोगे तो आपको उस पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा. व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड 100% अमाउंट ऑन दैट असेट एंड द कंट्रोल लाइज ओनली इन द हैंड्स ऑफ द ओनर, इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर. टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. So portfolio investment होता है when we purchase an asset in the rest of the world, but it does not gives you a full control over the asset. Like it can be in a sharing proportion, it can be in a partnership proportion. Like we have set up a business in America, or we want to set up a business in America, so we already patched up, we already tied up with the company doing business over there. So they are having 50% shares, we are also having 50% shares, or they are having 40%, we are having 60%. So these kind of sharings, when we are having an asset over there but cannot have a full control over the asset, is called portfolio investment. Talking about changes in foreign exchange reserve. So basically क्या होता है, you might have heard कि RBI के पास में foreign exchange के storages होते हैं, foreign exchange के reserves होते हैं. RBI हमेशा अपने पास में foreign currencies को store करके रखता है. इसके अलावा gold, precious metals, platinum, इस तरह की चीज़ें भी RBI को अपने पास reserve में maintain करके रखनी पड़ती हैं. So these kind of reserves, अगर इन reserve में भी कोई changes आते हैं तो वो condition में भी वो capital account में क्रेडिट या डेबिट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. लाइक समटाइम्स अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो फॉरेन एक्सचेंज में विल गेट टू नो कि जब करेंसी की वैल्यू डिसीजन की बात आती है तो वहाँ पर आरबीआई को अपने रेट्स डाउन करने के लिए या रेट्स इंक्रीज करने के लिए रिजर्व्स में चेंजेस करने पड़ते हैं. सो इन दैट केस ऑल ऑफ दोज चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी. Next, let us talk about some more items which are included in BOP and BOT. So first is the category of autonomous items. As the name suggests, autonomous means they are independent of their identities. उनका जो nature होगा, if they are of debit nature or of the credit nature, वो अपने nature को follow करके चलेंगे. वो BOP के किसी अपने status पे या BOP के surplus या deficit से effect नहीं होंगे. ठीक है. सो ऑटोनॉमस आइटम्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं. दीज रेफर्स टू द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम प्रॉफिट मोटिव के लिए एंगेज करते हैं. प्रॉफिट मोटिव के लिए हम ऐसे ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बीओपी सिचुएशन. एज आई ऑलरेडी सेड कि इनको कंट्री की बीओपी सिचुएशन से कोई इफेक्ट नहीं होता. लाइक अगर बीओपी डेफिसिट में भी जा रहा है या बीओपी सरप्लस में है तो उससे ट्रांजैक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं है. अगर ट्रांजैक्शन का नेचर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइड पे ही जाएगा. These transaction does not maintain the BOP identity. Definitely ये BOP identity को maintain करने का काम नहीं करते. BOP identity maintenance means अगर BOP को बैलेंस रखना है तो ये ट्रांजैक्शंस के कारण बीओपी बैलेंस हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा. नेक्स्ट, these are not continued by positive or negative BOP status. These are known as above the line item. Definitely इन्हें हम कंडीशन नहीं कर सकते कि इनकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटस हो रहा है. ये हमेशा above the line items रहते हैं. मीन्स इनका जो नेचर है ये वहीं पर ही डेबिट या क्रेडिट होंगे. These transactions takes place on both current and capital account. Definitely दोनों ट्रांजेक्शन्स दोनों अकाउंट्स में किसी में भी हो सकते हैं. These transactions are undertaken by both private as well as the government and public sector. कोई भी सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, वो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को कर सकता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिसिट ऑन करेंट अकाउंट इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. और अगर हमें कभी भी करेंट अकाउंट में डेफिसिट दिखता है तो हम वहाँ से ये समझ जाएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है. नाउ लेट अस talk about some of the example of autonomous items. You can say कि हमने अगर कोई एक्सपोर्ट किया है, सो एक्सपोर्ट किया एंड वी हैव गॉट द फॉरेन एक्सचेंज इन कंसिडरेशन. ये एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हमेशा
क्रेडिट साइड पर ही जाएगा। अब ये एक्सपोर्ट अगर विजिबल इनविजिबल से रिलेटेड है तो दिस विल गो टू द करंट अकाउंट, और ये एक्सपोर्ट अगर कहीं हमने किसी को लेंडिंग किया है फंड्स का, वी हैव गिवन लोन टू सम अदर कंट्री, तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, बट नेचर उसका क्रेडिट ही है, इट वोंट बी अ डेबिट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सिमिलरली इसके रेट्रोस्पेक्टिव देखो, इसके अगेंस्ट में देखो कि अगर यहाँ पर हम किसी इंपोर्ट की बात करते हैं, अगर वो गुड्स का इंपोर्ट है तो वो करेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, एंड इंपोर्ट में अगर हमने किसी दूसरी कंट्री से लोन या फंड्स या बोरोइंग्स ली है तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। अगेन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम है, उसका बीओपी स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। So these are the autonomous items which are independent of their BOP identity. Now second category is accommodating items. These type of transactions refer to those that are undertaken to maintain the BOP identity. अभी हमने जिन autonomous items के बारे में पढ़ा तो ये autonomous items वो थे जो independent of the BOP identity चल रहे थे। मतलब अगर उसका status है कि उसे deficit में ही जाना है या उसे surplus create करना है तो वो अपनी nature के according चलेगा, वो BOP identity को maintain नहीं करेगा। बट एकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जिसको हम बीओपी की आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दीज आर नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। इसको हम प्रॉफिट के लिए नहीं करते। जैसे सिमिलरली मैंने अभी कहा कि हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, सो वाई वी आर डूइंग एक्सपोर्ट्स टू अर्न मोर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, टू अर्न मोर प्रॉफिट। बट ऑटोनॉमस आइटम्स के अलावा जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं इनको हम प्रॉफिट के लिए इनकार नहीं करते। ये ट्रांजैक्शंस बीओपी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट, दीज ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन कैपिटल अकाउंट एंड अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स कर सकते थे, बट एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है और ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जस्ट थिंक, समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को बहुत कम कर देती है या टैक्स रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। कभी किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलने लगती है और कभी वही सब्सिडी का फिगर कम हो जाता है। कभी गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और कभी गवर्नमेंट आपसे उसी के बदले लाइसेंसिंग फ़ीस या अदर चालान या टोल टैक्स इस तरह की चीज़ों के रेट्स इंक्रीज़ कर देती है। ये सब एकोमोडेटिंग आइटम्स के पार्ट में आप समझ सकते हो। लाइक अगर गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस आया है बीओपी में, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? कोई स्कॉलरशिप्स दे सकती है, ग्रांट्स प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के थ्रू डीए बढ़ सकता है उनका, दैट इज़ कॉल्ड डियरनेस अलाउंस, इस तरह की चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट का बीओपी स्टेटस डेफिसिट में गया है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास फंड्स कम है, उन्हें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। सो इस कंडीशन में गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा देगी, लाइसेंसिंग फ़ीस बढ़ा देगी, टैक्सेस इंक्रीज़ कर देगी, इसके अलावा चालान के जितने चार्जेस होते हैं वो बढ़ा देगी। सो इस तरह से गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ये कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, प्राइवेट सेक्टर स्कॉलरशिप्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। सो बीओपी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ओनली कैन अंडरटेक दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। सो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह से हो सकता है। व्हाट इज एक्चुअली अ डिसइक्विलिब्रियम? मतलब जो इक्वल स्टेटस होना चाहिए वो नहीं है। देन दिस कैन बी इन सरप्लस एंड डेफिसिट, दोनों चीज़ें डिसइक्विलिब्रियम ही है। कीप इट इन माइंड कि सरप्लस होना भी अच्छा नहीं है और डेफिसिट होना भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं है कहने का मतलब है कि हम हमेशा बीओपी को बैलेंस्ड रखते हैं। कभी भी कंट्री अपने बीओपी को सरप्लस या डेफिसिट किसी में भी नहीं जाने देती। इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड। ऐसा क्यों होता है वो भी हम अभी लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। सो अभी हम ये देखते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम बीओपी में दो कंडीशंस से हो सकता है। इट कैन बी अ सरप्लस बीओपी एंड इट कैन बी अ deficit BOP. So what is surplus? When inflow of foreign exchange is more than the outflow. आपने ज़्यादा foreign exchange earn किया और कम पेमेंट्स करी थी, तो आपके पास सरप्लस में फॉरेन एक्सचेंज बचा। एंड डेफिसिट जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्हेन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
अब हमने डिसइक्विलिब्रियम तो देख लिया कि क्या होता है, डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, बट उसके रीजंस को स्टडी करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर मेकिंग BOP टू बी इन अ डिसइक्विलिब्रियम स्टेट. सो फर्स्ट पॉइंट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन वी ऑल नो, महंगाई, जब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, सर्विसेज महंगी हो जाती है, सो वो इन्फ्लेशन, अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो वो BOP को इफ़ेक्ट करता है. कैसे इफ़ेक्ट करता है? अगर आपकी डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट हाई है, इट मीन्स आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स महंगे मिल रहे हैं, और इस कंडीशन में हमें क्या लगेगा कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहा है वो सस्ता है. कंपेरेटिवली इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स चीपर होंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, बिकॉज इन्फ्लेशन इज प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री. एंड इस कंडीशन में क्या होगा कि हम ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करवाने लगेंगे और कंट्री का BOP स्टेटस डेफिसिट में चले जाएगा. ये अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो हमें बहुत इजीली समझ सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, कोई मोबाइल फ़ोन आपको लेना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है, यू वांट टू बाय लैपटॉप्स, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी फॉरेन में रहते हैं, सो यू कॉल these items from them. उनसे आप कह देते हो कि ये वाला फ़ोन लेके आना, ये वाला लैपटॉप आपको परचेज़ करना है, वो आपके लिए लेकर आते हैं. वाई? क्योंकि कंपेरेटिवली प्राइसेस के अकॉर्डिंग जितने फीचर्स वहाँ कम प्राइस पे मिल रहे हैं, उससे वो फीचर्स आपको यहाँ उतने कम प्राइस पे अवेलेबल नहीं होते. तो इस कंडीशन में हम इम्पोर्टेड गुड्स खरीद लेते हैं, और इससे होता क्या है, कंट्री का BOP स्टेटस डेफिसिट में चला जाता है. इसी के कॉन्ट्रेरी, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन आउटसाइड कंट्री में है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिससे आप डील कर रहे हो, उस फॉरेन कंट्री में अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन दैट केस आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस कंट्री के लोगों को चीपर लगेगा कंपेरेटिव टू देयर प्रोडक्ट्स, एंड वो आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिससे आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे और यू विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज़ अ सरप्लस BOP. पॉइंट नंबर 2 इज चेंजेस इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर. यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, कॉस्ट स्ट्रक्चर मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जब हम ज़्यादा करते हैं, डेफिनेटली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन अगर अपग्रेड हो जाएगी, सो जो बेसिक कॉस्टिंग है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की वो कम होगी, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि अब हम उतनी ही कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं. और जब हमारे पास प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास सरप्लस BOP होगा. बट उसी के कंट्राडिक्शन में, अगर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉस्टलियर हो गया, मीन्स जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है वो आउटसाइड कंट्री में ज़्यादा अच्छी आ गई, आपसे एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर अगर आ गई, तो फिर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके गुड्स काफ़ी चीप होंगे और वो हमारे यहाँ इंपोर्ट करवाएंगे गुड्स को, और हमारा जो BOP स्टेटस है वो डेफिसिट में चला जाएगा. जैसे कि चाइना जो गुड्स बनाता है वो हमेशा बहुत सस्ते होते हैं. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, और सेकेंडली टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली उनके पास काफ़ी अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो गुड्स उतने चीपर होते हैं. तो हमें हमेशा अब डोमेस्टिक गुड्स या किसी और कंट्री के गुड्स से चाइनीज़ गुड्स जो है वो ज़्यादा सस्ते लगते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल क्या है? एक इकोनॉमी का एक कंप्लीट ट्रेड साइकिल होता है. इकोनॉमी कभी बूम पर होती है, कभी रिसेशन पर होती है, कभी डिप्रेशन पे भी होती है. सो बूम इज़ द कंडीशन जहाँ पर सारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, सबकी इनकम्स भी अच्छी आ रही है, और सारी इकोनॉमी बैलेंस्ड वे में है, एम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी में चल रहा है. डिप्रेशन, रिसेशन की कंडीशंस वो होती हैं जहाँ पर मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है, लोगों के पास इनकम नहीं होती प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, मार्केट पूरा डाउन चले जाता है, शेयर्स मार्केट के प्राइसेस बिल्कुल गिर जाते हैं. तो वो वाली कंडीशन डिप्रेशन और रिसेशन की हो जाती है, जिसको हम मंदी की सिचुएशन बोलते हैं. सो बूम की अगर सिचुएशन आपकी इकोनॉमी में है, सो डेफिनेटली आपके पास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, आप ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाओगे, और कंट्री का जो आपका BOP स्टेटस है वो सरप्लस में रहेगा. सिमिलरली अगर हमारी कंट्री में डिप्रेशन ज़्यादा सिचुएशन में आ रहा है, हमारी कंट्री में रिसेशन की सिचुएशन अगर आ रही है, सो उस कंडीशन में हमारे पास अपना प्रोडक्शन करने के कैपेसिटी नहीं रहेगी, और उस कंडीशन में हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे और BOP स्टेटस डेफिसिट में चले जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी.
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के बिजनेस स्टेटस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड उसके फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस के लिए सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है सो उस कंडीशन में आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, विच मीन्स दैट इनफ्लो विल बिकम मोर देन आउटफ्लो। आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज़्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा। दिस विल रिजल्ट इन सरप्लस BOP। बट इफ़ कंडीशंस जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, वी हैव पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इन दैट केस हमारे पास आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इनफ्लो से। मतलब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा पे करना पड़ेगा और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, कॉज करेगा डेफिसिट BOP को। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपके कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट को फेवर करती है, प्रमोट करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करें फॉरेन कंट्रीज़ को, सो उस कंडीशन में डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ सरप्लस BOP, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक्सपोर्ट करेंगे उनको। बट इफ़ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट सिर्फ इतना समझती है कि इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और गुड्स को यहाँ से बाहर नहीं भेजना है, इस तरह की आइडियोलॉजी अगर गवर्नमेंट की होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास डेफिसिट BOP हो जाएगा, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इफ़ इंटरनेशनल मार्केट में आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ अ फेवरेबल चेंज। मतलब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लोग काफ़ी लाइक करना स्टार्ट करें, उसको पसंद करें, उसे खरीदें अगर, तो हमारे पास सरप्लस BOP की सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसी के कॉन्ट्ररी अगर हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंटरनेशनल मार्केट में अनफेवरेबली चेंज हो जाए, लोगों को अब वो प्रोडक्ट उतना पसंद नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हमारे पास डेफिसिट BOP होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न नहीं कर पाएंगे। Now let us discuss about two different status of BOP, that is BOP in accounting sense and BOP in operational sense. So BOP in accounting sense, it refers to the BOP identity of equality of inflow and outflow of foreign exchange. Basically अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि BOP में कितने इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहे हैं और कितने आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहे हैं, और इन दोनों की इक्वालिटी अगर आ गई तो वहाँ पर BOP को इक्विलिब्रियम पे स्टेट बता देंगे। नेक्स्ट BOP इन ऑपरेशनल सेंस की बात करें तो इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ BOP अकाउंट विच रिफ्लेक्ट्स एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन टू ऑफसेट ईदर सरप्लस और डेफिसिट BOP। जैसा मैंने एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस पढ़ाते टाइम बताया था कि वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट ऑफ BOP स्टेटस नहीं होते और उनको इंसर्ट ही तब किया जाता है जब BOP में सरप्लस या डेफिसिट की सिचुएशन होती है। सो बेसिकली ऑपरेशनल सेंस में, मतलब प्रैक्टिकली जब हम BOP पर काम करते हैं, BOP की बात करते हैं, BOP स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, सो वहाँ पर हम BOP अकाउंट को एनालाइज करके ये चेक करते हैं कि हमें कौन से एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स को अंडरटेक करना पड़ेगा ताकि हम BOP के सरप्लस या डेफिसिट को ऑफसेट करके बैलेंस कर सकें। Now the thing which we are waiting for a long in this chapter कि why BOP is always in balance, कैसे हम हमेशा BOP को बैलेंस पर ले आते हैं, वहाँ पर सरप्लस या डेफिसिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सरप्लस डेफिसिट नहीं होता, BOP में सरप्लस भी होगा एंड डेफिसिट भी होगा ड्यू टू रेसिट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री रिलेटेड टू ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड किसी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से BOP में या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। बट जब भी सरप्लस या डेफिसिट की सिचुएशन आएगी, एट दैट मोमेंट वी use accommodating transaction, we introduce them into the BOP account so that कि BOP स्टेटस को मेंटेन किया जा सके, इस तरह का कोई भी सरप्लस डेफिसिट को हम एलिमिनेट कर सकें BOP स्टेटस से, एंड BOP वापस से किस पोजीशन पर आ जाएगा, एक बैलेंस्ड पोजीशन पर आ जाएगा, जहां पर डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे, जहां पर आउटफ्लो इनफ्लो इक्वल होगा, ना कोई सरप्लस की सिचुएशन होगी ना ही डेफिसिट की सिचुएशन होगी।
So here comes the end of this chapter. We have studied about balance of payment, balance of trade, its definition, its meaning, components के types. Then we have discussed about autonomous and accommodating items, and at the end the reasons for disequilibrium in BOP and the factors which are causing disequilibrium, and at the end the one most important question, that is why BOP is always in balance. So go through with the chapter again. If you have any doubts, just read it through again, one time, two times, because it's quite complicated thing. And again, if you have any still doubts, you're not able to understand any topic, any line, any concept, then just comment down below. I'll answer all your queries. Okay, good luck.